So Yash, you may like to begin the session. Okay, sir. May I start? May I start, sir? Go ahead. Okay, thank you, sir. Good morning, one and all present here. Today it is my privilege to introduce Dr. Nityanand Singh, an esteemed member of Honorable Supreme Court of India and fellow member of Institute of Company Secretary of India. His academic accomplishments include a doctorate in law, distinguished in legal arena. Sir not only serve as an advocate practicing at the Honorable Supreme Court of India, but also boasts over 2 decades of extensive experience in litigation. He holds the esteemed position of being a partner and the founder of the global recognized Naksh Legal Advocate and Solicitors, an international law firm. This firm operates in the realm of corporate law within the retail concept, presently manages litigation across more than 500 districts in India and beyond. Beyond his legal prose, Sir is deeply committed to societal welfare and is all the helm of the Vidya Vijay Foundation, an NGO dedicated to enhancing education, social standards, and living conditions for the underprivileged. This foundation's name is derived from Nityanand Sir's parents, paying tribute to his mother, Mrs. Vidyadhari Devi, and his father, Dr. Vijay Narayan Singh. Sir's influences extend to academic as well. He holds visiting faculty position at prestigious institutes like IIM, Indian Institute of Management, ICSI, Institute of Company Secretariat of India, ICAI, Institute of Chartered Accountant of India, along with several other esteemed law colleges and business schools across India. Engaged not only within the legal domain, Sir has also demonstrated his activity involvement in social and political sphere, even consented in Delhi Legislative Assembly election, and participants can accept an engaging and informative session that will equip them with the necessary knowledge to navigate. Now I'd like to invite Nityanand sir for today's session. Thank you, Ms. Shreyas, for a wonderful introductions. Thank you. Friends, today we have the session on the divorce, and certainly it is a very vibrant topic, and it is related to all the members in the society. First of all, we will take the session in English as well as in Hindi, क्योंकि हमारे बहुत से साथी ऐसे भी हैं जो जनरल पब्लिक से भी आते हैं, तो उन लोगों के लिए भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही सुटेबल रहेगा. सबसे पहले हम चर्चा करेंगे what is the marriage. Then once there is a solemnization of the marriage, then the question arises for the divorce. As per the Hindu, there is a mate of the two souls. दो आत्माओं का मिलन हमारे हिंदू के हिसाब से, हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से दो आत्माओं का मिलन शादी कहलाता है. There is a mate of the two souls. और शादी होने के बाद there are the certain circumstances. That's why the question of the divorce arises. I would like to request to all of you to please mute so that certainly we can have a discussion. I would like to request our great Mr. S.K. चौबे जी से मेरा अनुरोध है कि थोड़ा आपने म्यूट कर लें, क्योंकि बात कर रहे हैं तो शायद आवाज आ रही. Friends, then we will discuss what is the divorce and what is the ground of the divorce under section 13 of the Hindu Marriage Act. So first of all, we have to know what is the divorce and under which conditions divorce can be obtained. What is the ground for the divorce? We will discuss in detail. And what is the jurisdictions to file a petition before the Honorable Court for the divorce. And there are the types of the divorce. What are the types of the divorce? Maybe the contested divorce, maybe the divorce by mutual consent. So we will come into the elaborate, and thereafter we will also show
how a petition can be drafted, how the petition can be filed, and how the argue before the court, and how the decree of divorce can be obtained. And what are the terms and conditions and how we'll proceed, we will discuss in detail. And whoever have a question answer, within half an hour, we will cover the theoretical portions, and thereafter 2-3 minutes, 5 minutes break to have a question answer session. Then you will go for the practical sessions, how the petition can be drafted and how it can approach to the court. We will start with I am sharing the PPT with us. Yes. Divorce defined under section 13 of the Hindu Marriage Act 1955. First of all, you have to know what is the general meaning of the divorce. Divorce, also known as the dissolution of the marriage. We have already discussed. हमने पहले भी डिस्कस किया कि सबसे पहले शादी करेंगे, शादी के बाद ही क्वेश्चन ऑफ द डाइवोर्स अराइज होता है. तो व्हाट इज द डाइवोर्स? डाइवोर्स इज नोन एज द डिसोल्यूशन ऑफ द मैरिज. जो शादी हुई है, शादी का जो अलग होना जो है वो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज कहलाता है, जिसको डाइवोर्स कहते हैं. प्रोसेस ऑफ टर्मिनेटिंग ए मैरिज और मैरिटल यूनियन, इट कैन बी सेड टू बी लीगल डिसोल्यूशन ऑफ द मैरिज बाय ए कोर्ट. ऑफ कोर्स नाउअडेज, पहले ऐसा भी होता था कि पंचायत में लोग बैठ करके अगर दो हस्बैंड वाइफ के रिश्ते ठीक नहीं चल रहे हैं तो उसको जो है पंचायत डिसाइड कर देती कि अब ये दोनों लोग एक दूसरे से अलग रहेंगे. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस पंचायत के डिसीजन को जो है लीगल और वैलिड और बाइंडिंग नहीं माना. इसके बाद से जो है केवल और केवल आज की डेट में जो है कोर्ट के द्वारा जो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज है, डाइवोर्स ग्रांट होता है, केवल उसे ही जो है हम डाइवोर्स मानेंगे इन द आइज ऑफ लॉ. इट इज अ लीगल प्रोसेस ऑफ एंडिंग द मैरिज. Hindu Marriage Act 1955 divorce. What is a divorce? Hindu Marriage Act, there are some provisions given regarding a valid divorce. When the spouse can get divorce in the court of law, there are the two types of divorce. जैसे मैंने बताया आपको, दो तरह के डाइवोर्स हो सकते हैं. एक होता है कंटेस्टेड डाइवोर्स, एक होता है डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट. अब कंटेस्टेड डाइवोर्स का मतलब ये होता है कि अगर आपका पति या पत्नी दोनों में से जो है कोई भी आदमी अगर डाइवोर्स देने के लिए तैयार नहीं है और एक आदमी जो है डाइवोर्स देना चाहता है, तो वो जो है डाइवोर्स केस फाइल करेगा, उसको जो है कंटेस्टेड डाइवोर्स कहते हैं. और डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट का मतलब होता है कि पति और पत्नी दोनों ही राजी हैं कि दोनों के रजामंदी से जो है डाइवोर्स किया जा सकता है. डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट. द हिंदू मैरिज एक्ट वाज बेस्ड ऑन द फॉल्ट थ्योरी इन व्हिच एनी वन ऑफ द एग्रीव्ड स्पाउस, सेक्शन 13 सबसेक्शन 1, कैन अप्रोच द कोर्ट ऑफ लॉ एंड सीक द रेमेडी ऑफ द डाइवोर्स. After the amendment in 1976 by adding provision of section 13B, no fault theory is also added. Section 13 subsection 2 provides the grounds on which only the wife can approach the court of law and seek the remedy of the divorce. Means before the amendment of 1976, क्योंकि ये जो एक्ट आया वो 1955 में आया और 1976 तक हमारे पास केवल एक ही ऑप्शन अवेलेबल था कि जो है फॉल्ट थ्योरी. फॉल्ट थ्योरी मतलब देयर शुड बी सम ग्राउंड फॉर द डाइवोर्स. अगर पति या पत्नी में से दोनों एक दूसरे को कोई परेशान करते हैं, क्रूरल्टी करते हैं या और भी दूसरे जो ग्राउंड होते हैं, वो फॉल्ट थ्योरी का मतलब होता है कि जब तक कोई जो है फॉल्ट ना हो एक दूसरे में, तब तक आप डाइवोर्स के लिए नहीं जा सकते थे बिफोर द अमेंडमेंट ऑफ 1976. लेकिन 1976 के अमेंडमेंट आने के बाद, जिसमें सेक्शन 13B ऐड किया गया, उसके बाद जो है केवल और केवल फॉल्ट थ्योरी नहीं रही. अब आप अपनी रजामंदी से भी, अगर कोई भी फॉल्ट नहीं भी है तो भी अगर पति पत्नी अपनी रजामंदी से कोर्ट में जा करके कहते हैं कि हम दोनों लोग जो है
के साथ रहना संभव नहीं है, हम दोनों लोग अलग होना चाहते हैं, तो भी जो है 1976 के बाद जो है वो पति पत्नी अपना डाइवोर्स ले सकते हैं। अब आगे हम डिस्कस करेंगे कि सेक्शन 13(1), 13A, 13(2), 14 इनके क्या प्रोविजंस हैं। अगर कोई डाइवोर्स लेना चाहता है तो उसके लिए क्या प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। देन वी विल डिस्कस ऑन द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 सेक्शन 30 डाइवोर्स। ये जो सेक्शन 13 है, ये सेक्शन 13 में डाइवोर्स जो है कंटेस्टेड डाइवोर्स है। सेक्शन 13 सबसेक्शन 1, इसमें आपको जो है ग्राउंड्स दिए गए हैं। व्हाट आर द ग्राउंड्स अंडर विच वी कैन अप्रोच टू द ऑनरेबल कोर्ट फॉर डाइवोर्स। लेट वी विल सी, चलिए हम देखते हैं। ए मैरिज सोlemnized whether before or after the commencement of this act may, on a petition presented by either the husband or the wife, be dissolved by degree of divorce on the ground that the other party, पति और पत्नी दोनों ही डाइवोर्स के लिए जा सकते हैं। या तो पत्नी भी जा सकती है डाइवोर्स के लिए, पति भी जा सकता है डाइवोर्स के लिए। अब उसके लिए क्या क्या ग्राउंड होना चाहिए, व्हाट आर द नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स टू रिक्वायर्ड टू अप्रोच टू द ऑनरेबल कोर्ट। सबसे पहला बात है सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 क्लॉज 1, has after the solemnization of the marriage has voluntary sexual intercourse with any other person than his or her spouse. This is one of the grounds that the person has voluntarily engaged in the sexual intercourse with another person. Maybe if the wife is engaged with the sexual intercourse with another man, or man is having the sexual intercourse with another woman, then this is one of the grounds that the spouse can approach the honorable court. This is the first ground. अगर कोई भी पति किसी दूसरी औरत के साथ जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो उसके लिए जा सकते हैं, या पत्नी किसी दूसरे पति के साथ जो है इंगेज होती है, दिस इज वन ऑफ द ग्राउंड। दूसरा ग्राउंड आता है, माय डियर फ्रेंड्स प्लीज म्यूट बिकॉज इट्स डिस्टर्बिंग। एंड अनदर IA had after the solemnization of the marriage treated the petitioner with cruelty. अगर पति और पत्नी एक दूसरे का सम्मान नहीं करते हैं, एक दूसरे के ऊपर क्रूएलिटी इज अ वेरी डिफाइंड टर्म एंड वेरी इलॉबरेटली डिफाइंड। व्हाट डू मीन बाय क्रूएलिटी, इसमें हम आगे डिस्कस करेंगे। क्रूएलिटी दो तरह की हो सकती है, इसमें जो है मेंटल क्रूएलिटी होती है, एक फिजिकल क्रूएलिटी होती है। अगर किसी के साथ मारपीट होती है तो वो जो है फिजिकल क्रूएलिटी है, और किसी को जो है मेंटल टार्चर किया जाता है। मेंटल टार्चर मतलब किसी को गाली गलौज करते हैं, या फिर जो है उसके पेरेंट्स के बारे में कुछ आप गलत सही कहते हैं, या फिर पत्नी के पेरेंट्स आपके ऊपर दबाव डालते हैं कि आप जो है अपनी पत्नी को लेके घर से बाहर रह जाइए, या किसी की पत्नी किसी सास को जो है गाली गलौज करती है, अपने पति को खाना नहीं देती हैं। दीज आर ऑल द टर्म्स एंड कवर्ड अंडर द क्रूएलिटी। या पति अपने जो है पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता है, उनके लिए फूड और शेल्टर की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं। दीज ऑल आर द टर्म्स। क्रूएलिटी इज अ वेरी इलॉबरेटेड टर्म्स, और मोस्ट ऑफ द केसेस में जो है ये ग्राउंड लिया जाता है क्रूएलिटी का फॉर द डाइवोर्स। तीसरी कंडीशन आती है, हैज डिजर्टेड द पिटिशनर फॉर ए कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 2 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रेजेंटेशन ऑफ द पिटिशन। अगर पति या पत्नी घर छोड़ करके चले जाते हैं और 2 साल तक अगर वो नहीं आते हैं, या 2 साल तक जो है अगर एक दूसरे के संपर्क में नहीं आते हैं, तो ये एक ग्राउंड होता है कि वो जो है पति या पत्नी दोनों में से कोई भी डाइवोर्स ले सकता है। चौथी कंडीशन आती है, हैज सीज्ड टू बी ए हिंदू बाय कन्वर्जन टू अनदर रिलीजन। अगर दिस इज द हिंदू मैरिज एक्ट, ये हिंदू मैरिज एक्ट के तहत हम सारी चर्चाएं कर रहे हैं। अगर कोई भी हिंदू अगर किसी दूसरी या तो मुस्लिम क्रिश्चियन धर्म में परिवर्तित अपना धर्म परिवर्तन कर लेता है, तो दिस इज वन ऑफ द ग्राउंड फॉर द डाइवोर्स। तो पति या पत्नी कोई भी, अगर किसी के पति जो है हिंदू हैं, मुसलमान बन जाते हैं, क्रिश्चियन बन जाते हैं, या फिर दूसरे कोई धर्म का वो ग्रहण कर लेते हैं, तो ये हिंदू की पत्नी जो है उनका जो है डाइवोर्स लेने के लिए इंटाइटल्ड है। उसी तरह से पत्नी अगर जो है कोई दूसरा धर्म परिवर्तन कर लेती है तो उनका पति जो है डाइवोर्स लेने के लिए इंटाइटल्ड है। हैज बीन इनक्यूरेबली ऑफ द अनसाउंड माइंड। दोनों में से पति या पत्नी दोनों में से कोई भी अनसाउंड माइंड हो, मतलब उनका दिमागी तौर पे वो ठीक नहीं है, और हैज बीन सफरिंग कंटिन्यूअसली और इंटरमिटेंटली फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर ऑफ सच ए काइंड and to such an extent that the petitioner cannot reasonably be expected to live with the respondent। ऐसे कोई जो है या तो मंद बुद्धि हो, या फिर उनका दिमाग काम नहीं करता हो, या फिर जो है कि कोई और उनको जो है दिक्कत हो, तो उस तरह से अगर कोई अनसाउंड माइंड है
तो भी जो है ये ग्राउंड का, दिस इज वन ऑफ द ग्राउंड फॉर द डाइवोर्स। अब जो है अनसाउंड माइंड को कैसे, क्या क्या अनसाउंड माइंड में कवर होता है, इसके लिए जो है अनसाउंड माइंड को जो है एक्सप्लेन किया गया है। एक्सप्लेनेशन, दिस कॉल द एक्सप्रेशन मेंटल डिसऑर्डर मीन्स मेंटल इलनेस, arrested or incomplete development of the mind, psychotic disorder or any other disorder or disability of the mind and includes schizophrenia. This covered under mental disorder. मतलब या ऐसी कोई दिमागी उनको बीमारी हो, या उनका दिमाग विकसित नहीं हुआ हो, या साइको टाइप के होते हैं जो लोग कुछ देर तो ठीक रहते हैं लेकिन कुछ देर के बिल्कुल वो उनका दिमाग काम करना बंद कर जाता है। तो द एक्सप्रेशन साइकोपैथिक डिसऑर्डर, इसमें भी जो है एक तो मेंटल डिसऑर्डर, उसके बाद साइकोपैथिक डिसऑर्डर, मतलब साइको टाइप के जो लोग होते हैं उनके लिए क्या डिफाइन किया गया है, मीन्स ए परसिस्टेंट डिसऑर्डर और डिसेबिलिटी ऑफ द माइंड वेदर आर नॉट इंक्लूडिंग सब नॉर्मलिटी ऑफ द इंटेलिजेंस which results in the abnormally aggressive or seriously irresponsible conduct on the part of the other party and whether or not it requires or is susceptible to medical treatment. Means ऐसे लोग हैं जिसका ऐसा डिसऑर्डर है जो परमानेंट है, जिसको ठीक नहीं किया जा सकता है, तो ऐसे कंडीशंस में जो है दिस इज वन ऑफ द ग्राउंड फॉर द डाइवोर्स। और अगले, क्योंकि कुल मिलाकर के 7-8 कंडीशन दी हुई हैं कि व्हाट इज द ग्राउंड फॉर द डाइवोर्स, हैज बीन सफरिंग फ्रॉम द वायरुलेंट एंड इनक्योरेबल फॉर्म ऑफ द लेप्रोसी। लेप्रोसी का मतलब होता है कोड। ऐसी कुछ बीमारी हैं जो कि वायरल डिजीज हैं और जिसे ठीक नहीं किया जा सकता, दिस इज वन ऑफ द ग्राउंड। अगर किसी को कोड है जो कि बिल्कुल इनक्योरेबल है, वो ठीक ही नहीं हो सकता है, तो दोनों स्पाउस जो है किसी जो है ग्राउंड ऑफ मतलब डाइवोर्स के लिए जा सकते हैं। हैज बीन सफरिंग फ्रॉम द वेनेरियल डिजीज इन ए कम्युनिकल फॉर्म। मीन्स वेनेरियल डिजीज को हम आगे डिफाइन करेंगे। वेनेरियल डिजीज मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ऐसी डिजीज जो ट्रांसमिट होती है। जैसे अगर इसमें उदाहरण लें तो एड्स का है, अगर किसी को जो है ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम एड्स है तो दिस इज वन ऑफ द ग्राउंड फॉर द डाइवोर्स। हैज रिनाउंस्ड द वर्ल्ड बाय एंटरिंग बाय रिलीजियस ऑर्डर। जैसे रिनाउंस द वर्ड मतलब उन्होंने अपना जो है पारिवारिक जीवन छोड़ करके कोई धर्म गुरु के पास चले जाते हैं या कोई ऐसा जगह चले जाते हैं जहां से उनका वापस आना संभव नहीं है। बहुत से हमारे हिंदू रीति रिवाज में जो है ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो घर द्वार छोड़ करके संत बन जाते हैं। अगर वो संत बन गए और घर आने का उनका कोई विचार नहीं है, ऐसे दिस इज आल्सो द वन ऑफ द ग्राउंड फॉर द डाइवोर्स। उनकी पत्नी जो है उनसे जो है डाइवोर्स लेने के लिए इंटाइटल्ड है। हैज नॉट बीन हर्ड ऑफ द बीइंग अलाइव फॉर ए पीरियड ऑफ 7 years। ऐसी कंडीशन में भी जो 7 साल तक उनका कोई अता पता नहीं है, जैसे एक बार अगर कोई मान लीजिए किसी के पति एक बार घर छोड़ करके चले गए और 7 साल तक उनका कोई अगर अता पता नहीं लग पाया, तो दिस इज वन ऑफ द ग्राउंड फॉर द डाइवोर्स। इन दिस सबसेक्शन एक्सप्रेशन डिसर्शन मीन्स डिसर्शन of the petitioner by the other party to the marriage without reasonable cause and without the consent or against the wish of the such party, and includes the willful neglect of the petitioner by the other party to the marriage and is grammatical variations and cognate expressions shall be construed accordingly। अगर बिना कंसेंट के चले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में जो है उनके स्पाउस जो है वो ले सकते हैं। जिस अभी तक हमने जो कवर किया सेक्शन 13 सब सेक्शन 1, इसमें जो है क्या क्या ग्राउंड हो सकते हैं, इस ग्राउंड पे जो है कोई भी जो है अपना डाइवोर्स जो है लेने के लिए इंटाइटल्ड है, वो कोर्ट में जा सकता है। अब आता है सेक्शन 1A। दिस इज आल्सो वन ऑफ द ग्राउंड। Either party to a marriage whether solemnized before or after the commencement of this act may also present a petition for the dissolution of the marriage by degree of the divorce on the ground that there has been no resumption of the prohibitions of cohabitation as between the parties to the marriage for a period of 1 year or upwards after the passing of the degree of the judicial separations in a proceeding to which they were parties। मतलब अगर एक जुडिशियल सेपरेशन मिल गया है, जुडिशियल सेपरेशन 1 साल का होता है और 1 साल खत्म होने के बावजूद भी अगर कोई चांसेस नहीं लगते हैं कि दोनों लोग जो है कोहबिट कर सकते हैं, मतलब दोनों लोग आपस में रह सकते हैं, तो दिस इज वन ऑफ द ग्राउंड फॉर द डाइवोर्स। इसी तरह से दूसरा है दैट देयर हैज बीन नो रेस्ट्रिक्शन ऑफ द कम्युनल राइट्स बिटवीन द पार्टी टू द मैरिज फॉर ए पीरियड ऑफ 1 year or upwards after the passing of the degree of the restriction of the communal rights
कंजुनल राइट्स का मतलब होता है रेस्टिट्यूशन ऑफ द कंजुनल राइट्स, मतलब पति पत्नी एक दूसरे से अलग होने के बाद जो है दोबारा एक दूसरे के साथ रहते हैं और एक डिग्री पास हो जाती है, और डिग्री पास होने के बावजूद भी 1 साल या उससे ऊपर हो जाने के बाद भी वो उनका रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुनल राइट्स नहीं हो पाता है। तो दिस इज वन ऑफ द ग्राउंड फॉर द डाइवोर्स कि अगर 1 साल बीत जाता है जिस दिन डिग्री पास हुई रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुनल राइट्स, उसके बाद भी पति पत्नी के संबंध नहीं स्थापित हो पाते हैं, दिस इज वन ऑफ द ग्राउंड फॉर द डाइवोर्स। अब हम आते हैं अनदर ग्राउंड्स फॉर द डाइवोर्स। सबसे पहले जो हमने सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 की बात की, अब उसको थोड़ा सा इलाबोरेटली समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला जो था हमारा एडल्ट्री। सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 का जो सबसे पहला ग्राउंड था हमारा था एडल्ट्री। एडल्ट्री मीन्स पति या पत्नी अपने स्पाउस को छोड़कर के किसी दूसरे स्पाउस के साथ जो है, किसी दूसरे हस्बैंड और वाइफ के साथ अगर एंगेज होता है, सेक्सुअली मेकिंग ए सेक्सुअल रिलेशनशिप, देन it amounts to adultery. As per the Hindu Marriage Act, in the matrimonial offence, the adultery is considered as one of the most important grounds for the seeking the divorce. Adultery means consensual and voluntary intercourse between a married person with another person, married or unmarried, of the opposite sex. मीन्स अगर पति जो है दूसरे किसी पत्नी के साथ संबंध बनाता है तो ये ग्राउंड ऑफ द एडल्ट्री होता है। दिस इज कॉल्ड एडल्ट्री। या पत्नी जो है दूसरे पति के साथ जो है अपना सेक्सुअल इंटरकोर्स एस्टेब्लिश करती हैं, दिस इज कॉल्ड एडल्ट्री। और एडल्ट्री इज वन ऑफ द ग्राउंड, अगर कोई ऐसा करता है तो वन ऑफ द ग्राउंड फॉर द डिवोर्स। एवर द इंटरकोर्स बिटवीन द हस्बैंड एंड हिज सेकंड वाइफ, दैट इज इफ देयर इज मैरिज, इज कंसिडर्ड अंडर बाइगेमी, द पर्सन इज लायबल टू बी एडल्ट्री। Swapna Ghosh versus Standard Ghosh, AR 1979. In this case, wife found her husband with other girl lying on the same bed, and the neighbor also confirmed that the husband has committed an offense, yet the wife gets the divorce. In this case, it was decided, Swapna Ghosh versus Sadanand Ghosh. It is decided once the husband is having the relationship with another wife, another lady, then this is one of the ground for the adultery, and the divorce has been granted by the court. Now we will come on the violence in the problem, not the solution. Cruelty. Cruelty is a very elaborately defined, and it includes physical cruelty as well as the mental cruelty. Cruelty means mental as well as the physical cruelty. The physical cruelty means when one spouse beats or causes any bodily injury to the other spouse. अगर पति पत्नी में मारपीट होती है तो एक दूसरे के अगर साथ मारपीट करते हैं तो फिजिकल या बॉडीली हार्म होती है, उनके शरीर को चोट पहुंचती है, ऐसे में ये जो है फिजिकल क्रूएल्टी में आता है। बट द कंसेप्ट ऑफ द मेंटल क्रूएल्टी वाज एडेड एज द स्पाउस कैन आल्सो बी मेंटली टॉर्चर्ड बाय द अदर स्पाउस। वेल इट इज इजी टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ द फिजिकल क्रूएल्टी बट डिफिकल्ट टू से अबाउट द मेंटल क्रूएल्टी। मेंटल क्रूएल्टी जो है बहुत ही इलैबोरेटेड टर्म्स हैं, बहुत सारी चीजें इस मेंटल क्रूएल्टी में आती हैं। फिजिकल क्रूएल्टी में तो केवल आपको बॉडीली इंजुरी है। तो अब आगे हम ये देखते हैं, इसको केस लॉ के जरिए और भी एग्जांपल्स के जरिए देखेंगे कि क्या क्या बॉडीली इंजुरी में कवर होता है। मेंटल क्रूएल्टी अगेंस्ट हस्बैंड बाय वाइफ। एक पत्नी अपने हस्बैंड के अगेंस्ट क्या क्या मेंटल क्रूएल्टी कर सकती है, एक थोड़ा सा एग्जांपल के द्वारा हम समझाएंगे। ह्यूमिलिएटिंग द हस्बैंड इन फ्रंट ऑफ हिज फैमिली एंड फ्रेंड्स। अगर पत्नी जो है पति को जो है इन फ्रंट ऑफ हिज फैमिली एंड फ्रेंड्स, पति के परिवार के साथ या उसके दोस्त, अगर पति जो है अपने परिवार के साथ या अपने दोस्तों के साथ अगर कुछ कर रहे हैं, अगर उनको पत्नी जो है कुछ का कुछ बोलने लगती है, दिस आल्सो अमाउंट्स टू क्रूएल्टी। ये क्रूएल्टी में आता है। अंडरटेकिंग द टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी विदाउट हस्बैंड कंसेंट। अगर कोई वाइफ जो प्रेग्नेंट है वो जो है प्रेग्नेंट को टर्मिनेट करा देती है, मतलब अगर बच्चे को अबॉर्ट करा देती हैं, बच्चा एबॉर्शन करा देती हैं विदाउट हस्बैंड कंसेंट, दिस इज आल्सो ए क्रूएल्टी। मेकिंग फॉल्स एलिगेशंस अगेंस्ट हिम। उनके खिलाफ झूठा एलिगेशन लगाती हैं कि आप ये करते हैं, वो करते हैं, इधर जाते हैं, उधर जाते हैं, दूसरे संबंध है। तो ऐसे में अगर कोई पत्नी कहती है तो ये आल्सो भी क्रूएल्टी में आता है। डिनाइल फॉर द मैरिटल फिजिकल रिलेशनशिप विदाउट ए वैलिड रीजन। अगर पत्नी जो है फिजिकल रिलेशनशिप बनाने से भी अगर मना करती है, दिस इज आल्सो ए क्रूएल्टी। कोई भी हस्बैंड अगर पत्नी के साथ जो है फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बना पा रहा है, और या पत्नी जो है जानबूझ के उनके साथ फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बनाती हैं, देन इट इज आल्सो द पार्ट ऑफ द क्रूएल्टी। वाइफ हैविंग अफेयर। अगर किसी की पत्नी दूसरे के साथ जो है अफेयर रखती हैं, तो ये भी जो है दैट इज आल्सो कवर्ड अंडर द क्रूएल्टी। वाइफ लिविंग इन
इमोरल लाइफ, मतलब उनका जो बिहेवियर है वो ठीक नहीं है, इमोरल लाइफ जीती हैं, तो भी जो है ये क्रूरल्टी है। द कांस्टेंट डिमांड फॉर द मनी, अगर वो अपने पति से जो है लगातार पैसे की डिमांड करती, मेरे को इतने पैसे चाहिए, उतना पैसे चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, जो कि अनरीजनेबल हो। स्वाभाविक सी बात है, हर पत्नी अपने पति से पैसे मांगती हैं, लेकिन उसका रीजनेबल डिमांड होना चाहिए। अगर अनरीजनेबल डिमांड है, दिस इज आल्सो कवर्ड अंडर इक्वालिटी। एग्रेसिव एंड अनकंट्रोलेबल बिहेवियर ऑफ द वाइफ, कई बार जो है वाइफ एकदम बिल्कुल वायलेंट हो जाती है या ऐसे बिहेवियर करती हैं कि जो कंट्रोलेबल नहीं है। दिस इज वन ऑफ द ग्राउंड फॉर इक्वालिटी। इल ट्रीटमेंट टू द हस्बैंड, पेरेंट्स एंड फैमिली, अगर वाइफ जो है हस्बैंड के जो है पेरेंट्स और उनके फैमिली मेंबर को जो है इल ट्रीट करती है, भोजन नहीं देती हैं, गाली देती हैं, तो दिस इज आल्सो कवर्ड अंडर द क्रूरल्टी। अब अभी तक तो पत्नी क्या क्रूरल्टी कर सकती है, अब हस्बैंड के बारे में आता है। एग्जांपल्स ऑफ द मेंटल क्रूरल्टी अगेंस्ट वाइफ बाय द हस्बैंड, एक हस्बैंड अपने वाइफ के खिलाफ क्या क्या करता है तो क्रूरल्टी में कवर होगा। एनी विलफुल कंडक्ट व्हिच इज ऑफ सच ए नेचर इज एज इज लाइकली टू ड्राइव द वुमन टू कमिट सुसाइड, पति जो है ऐसा कोई भी व्यवहार करता है जिसके लिए पत्नी जो है मजबूर हो जाती है सुसाइड करने के लिए, दैट कवर्स अंडर द इक्वालिटी। और टू कॉज ग्रेव इंजरी, कॉज ग्रेव इंजरी या डेंजर टू द लाइफ, या मारपीट उनके साथ करते हैं, या फिर ऐसी कोई प्रताड़ना देते हैं जिससे पत्नी जबरदस्ती कोई रेलवे ट्रैक के सामने कूद जाती हैं, कभी छत से कूद जाती हैं, या कभी कुएं में कूद जाती हैं। बहुत सारी ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। ऐसा कोई पति का बिहेवियर जो पत्नी को सुसाइड करने के लिए या फिर अपने शरीर को नुकसान पहुंचाने के लिए मजबूर कर देता है, ऐसे दीज ऑल आर कवर्ड अंडर द इक्वालिटी। मेंटल और फिजिकल harassment of the woman, where such harassment is with a view to coercing her or any persons related to her to meet any unlawful demand for any property or valuable security, or is on account of the failure by her or any person related to her to meet such demand। अगर कोई पति अपने पत्नी से कहता है मुझे जो है 2 लाख रुपए ला के दे, 10 लाख रुपए ला के दे, या मुझे ये गाड़ी दे, घोड़ा दे, या फिर जो है कोई मेरे को जो है मर्सिडीज गाड़ी ला के दे, दीज आर डिमांड्स, ऐसी कोई भी डिमांड अगर पति अपने पत्नी से करता है ये गलत है और ये क्रूरल्टी में कवर होता है। ऐसी कोई भी डिमांड आप नहीं कर सकते हैं जो वो देने की क्षमता नहीं रखती हैं या फिर वॉलंटरी वो नहीं दे सकती, ऐसी कोई चीजें जो है क्रूरल्टी में कवर होती हैं। माया देवी वर्सेस जगदीश प्रसाद, ये जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें कहा गया था cruelty which is a ground for the dissolution of the marriage may be defined as willful and unjustifiable conduct of the such character as to cause danger to the life, limb or health, bodily or mental, as to give rise to a reasonable apprehension of such a danger। इस केस में माया देवी वैसे जगदीश में जगदीश जी ने अपनी पत्नी के खिलाफ बहुत सारे एलिगेशन लगाते हैं कि जो है ये मेरी पत्नी जो है मेरे लिए भोजन नहीं देती है, या फिर मेरे बच्चों को मारती पीटती है, या फिर और भी जो है मेरे पेरेंट्स के साथ मिसबिहेवियर करती है। दिस इज वन ऑफ द ग्राउंड फॉर द डाइवोर्स और क्रूरल्टी में कवर होता है। इसको जगदीश जी को फिर जो है डाइवोर्स मिल गया था। फिर माया देवी जी ने हाई कोर्ट को अप्रोच किया था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट गई, उसके बावजूद ये केस जो है डिसमिस हो गया था। मतलब अगर कोई भी ऐसा काम करती हैं जिसमें जो है किसी की लाइफ थ्रेट और डेंजर है तो 100% ये क्रूरल्टी में कवर होता है। फॉल्स एलिगेशंस, कांस्टेंट थ्रेट ऑफ द पुलिस सेक्शंस अमाउंट्स टू क्रूरल्टी इन टाइटनिंग हस्बैंड टू डाइवोर्स। अगर कोई पत्नी अपने पति को कहती है, धमकी देती है कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, वैसा नहीं करेंगे तो मैं पुलिस बुला लूंगी, या फिर आपको जो है FIR में फंसा दूंगी, आपको झूठे आरोप में फंसा दूंगी, आपके ऊपर जो है डाउरी का केस डाल दूंगी, ऐसा अगर पत्नी अपने पति को कहती है तो दिस इज आल्सो कवर्स अंडर द क्रूरल्टी। और रिसेंट जजमेंट्स हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली ऑन 22 अगस्त 2023, मतलब 4 दिन पहले की जजमेंट है। डिवीजन बेंच ऑफ द Honorable High Court has decided that false allegations, constant threat of the police sections amounts to cruelty, entitle husband to divorce. In the matter of the Kulvinder Singh versus Gehlot, Kulvinder Singh Gehlot versus Parmila. In this case, Honorable High Court says that false allegations, constant threat of the police sections amounts to cruelty. Another living example of the cruelty, wife's family insisting husband to abandon his parents and become घर जमाई अमाउंट्स टू आल्सो क्रूरल्टी। अगर कोई पत्नी या पत्नी के परिवार वाले कहते हैं कि आप जो है अपने घर को छोड़ करके, अपने माता पिता को छोड़ करके मेरे घर में एज ए घर जमाई आके रहिए, और उनको मजबूर करते हैं,
दिस इज वन ऑफ द ग्राउंड ऑफ द क्रुएल्टी। इस क्रुएल्टी के ग्राउंड पे जो है पति को डाइवोर्स मिल सकता है। रिसेंट जजमेंट्स ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली ऑन 11 अगस्त 2023, मुश्किल से 10-12 दिन पहले की जजमेंट है इसमें। डिवीजन बेंच हैज डिसाइडेड वाइफ फैमिली इंसिस्टिंग हस्बैंड टू abandon his parents and become घर जमाई amounts to cruelty, entitle husband to divorce. In the matter of देवेंद्र गोविंद राम रविंद्र वर्सेस रेखा, इस मैटर में जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया, इसमें कहा कि अगर कोई वाइफ के अगर फैमिली वाले भी कहते हैं कि भाई तुम घर जमाई बन के रहो, दिस इज वन ऑफ द ग्राउंड फॉर द डाइवोर्स, इस क्रुएल्टी में आता है। फिर हमारा जो अगला ग्राउंड आता है डिसर्शन। 2 ग्राउंड हमने कवर कर लिए, एडल्ट्री, क्रुएल्टी, तीसरा आता है डिसर्शन। डिसर्शन में जो है अगर पति या पत्नी एक दूसरे को छोड़ करके 2 साल तक अगर जो है नहीं एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, तो इस ग्राउंड पे भी जो है हम डाइवोर्स ले सकते हैं। इन दिस केस द रिस्पोंडेंट लीव्स द हाउस with the intention to abandon his wife. Later, the wife approaches the court, but the defendant proved that even though he left the house with the intention to desert, but he tried to come back and he was prevented from doing so by prisoner, here the defendant cannot be held liable for the desertion. Desertion में जो है 2 साल अलग होना जरूरी है। इस केस में डिसाइड हुआ था कि पहले पति छोड़ के चले गए थे, लेकिन बाद में आ गए थे, उसके बाद भी पत्नी ने इनके ऊपर केस डाल दिया कि जो है ये हमें छोड़ के चले गए हैं, फिर बाद में प्रूफ हो गया कि नहीं वो वापस आ गए थे, तो फिर ये जो है डिसर्शन का केस नहीं बना। कन्वर्जन, अगला ग्राउंड आता है कन्वर्जन। वी आर इलैबोरेटली डिस्कसिंग एवरीथिंग विद द केस लॉज। इफ वन ऑफ द स्पाउस कन्वर्ट्स हिज रिलीजन टू एनी अदर रिलीजन विदाउट द कंसेंट ऑफ द अदर स्पाउस, देन द अदर स्पाउस कैन अप्रोच द कोर्ट एंड सीक द रेमेडी फॉर द डाइवोर्स। सुरेश बाबू वर्सेस लीला, इन दिस जजमेंट husband converts himself into the Muslim and marries another woman. Here the wife Leela filed a case and demanded the divorce on the ground of the conversion without her consent and cruelty. अगर कोई भी पति या पत्नी दोनों में से अगर अपना जो है धर्म परिवर्तन कर लेता है, दिस इज वन ऑफ द ग्राउंड, कन्वर्जन का जो है ग्राउंड बनता है। फिर आता है लेप्रोसी। लेप्रोसी जो इनक्यूरेबल है, मान लीजिए अगर जैसे शादी होने के बाद जो है आपको लेप्रोसी हो जाती है और वो डिजीज बाद में ठीक हो जाती है, दिस इज नॉट अ ग्राउंड फॉर द डाइवोर्स। लेकिन ऐसी आपको कोई रोग हो जाता है, लेप्रोसी हो जाती है जो इनक्यूरेबल है, तो ठीक हो ही नहीं सकता, ऐसी कंडीशन है, दिस इज वन ऑफ द ग्राउंड फॉर द डाइवोर्स। लेप्रोसी इज द इन्फेक्शियस डिजीज ऑफ द स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन्स, नर्वस सिस्टम, etc. This disease is transmitted from one person to another, thus it is considered as the valid ground for the divorce. In this case, Swaraj Lakshmi versus G.G. Padma Rao, AIR, Honorable Supreme Court. Husband filed the case for the granting the divorce on the ground of the leprosy. He claimed that his wife is suffering from the incurable leprosy with the expert. Here he succeeded in getting the divorce on the ground of the leprosy. अगर किसी लेप्रोसी की बीमारी हो जाती है, दिस इज वन ऑफ द ग्राउंड। और वेनरल डिजीजेज होती हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज, ऐसे अंडर दिस डिजीज इज अ कम्युनिकेबल फॉर्म एंड इट कैन बी ट्रांसमिटेड टू द अदर स्पाउस, देन दिस कैन बी कंसिडर्ड एज द वैलिड ग्राउंड फॉर द डाइवोर्स। अगर किसी को अगर शादी होने के बाद पता चल जाता है पति या पत्नी को कि इनको एड्स होगा, तो वो अपने आप, क्योंकि एड्स जो है कम्युनिकेबल डिजीज है, एक दूसरे से जो चल जाती है, कई बार तो अगर नहीं पता लगता है तो फिर वो बच्चों में भी ट्रांसमिट हो जाती है। ऐसे कंडीशंस में जो है एक दिस इज वन ऑफ द ग्राउंड फॉर द डाइवोर्स। मद्रास हाई कोर्ट हैज व्यूड इन द ईयर 2013 केस ऑफ द आर रवि कुमार वर्सेस मलवा विजी दैट any contiguous infections caused by sexual intercourse is defined as a venereal disease under Section 13B of the Hindu Marriage Act. Supreme Court has ruled in Messrs. So-and-so hospital that either husband or wife might divorce on the grounds of the venereal illness, and that a person who has suffered from the disease cannot be claimed to have any right to marry even before marriage, as long as he is not held of these conditions. Now we will consider the judicial separations. Judicial separations जो है we can approach under Section 10 of the Hindu Marriage Act for the judicial separations. Suppose अगर ऐसा होता है कि अगर शादी होने के बाद जो है अगर हस्बैंड वाइफ की नहीं बन रही है, तो वो जो है जुडिशियल सेपरेशन ले सकते हैं कि भाई 1 साल अलग रह के देखते हैं, शायद कुछ परिस्थितियां विपरीत या फिर अच्छी बन जाती हैं, फिर हम लोग रहना शुरू कर सकते हैं। Either party to a marriage, whether solemnized before or after the commencement of this, may present a petition praying for the decree of the judicial separations on any of the grounds specified in Section 13. जो हमने अभी ग्राउंड डिस्कस किए, उस ग्राउंड में जो है आप जुडिशियल सेपरेशन के लिए भी जा सकते हैं। और अगर जुडिशियल सेपरेशन हो जाता है, 1 साल के लिए पास कर देती है, और 1 साल उसके बाद भी अगर कोई
अगर आप लोगों के बीच में संबंध नहीं बन पाता हस्बैंड वाइफ के बीच में, तो दिस इज वन ऑफ द ग्राउंड फॉर द डाइवोर्स. Subramaniam Reddy versus Sakawati Amal. The Madras High Court discussed extensively the essence and range of the judicial separations parallelity and noted that if the partner requires judicial separation, the same could be provided on the grounds stated under Section 13 of the Hindu Marriage 1953, and the petitioner partner properly demonstrated the alleged relationship. जो भी सेक्शन 13 में ग्राउंड्स दिए हुए हैं, उस ग्राउंड पे आपको जुडिशियल सेपरेशन में मिल जाता है. रेस्टिट्यूशन ऑफ द कन्जुगल राइट्स. Restitution of the conjugal rights, husband and wife can file any institution. अगर कोई either husband or wife अगर एक दूसरे को जो छोड़ के चली जाती है, कई बार ऐसा होता है आपस में कि मियाँ बीवी के झगड़े हो जाते हैं, या तो पत्नी या पति दोनों एक दूसरे को छोड़ के चले जाते हैं, तो दोनों में से when either husband or wife has without reasonable excuse withdraw from the society of the other, the aggrieved party may apply for petition to the district court for restitution of the conjugal rights, section 9 of the Hindu Marriage Act, and the court on being satisfied on the truth of the statements made in such petition and that there is a no legal ground why the application should not be granted may decree restitution of the conjugal rights accordingly. अगर पति या पत्नी में से कोई एक दूसरे को छोड़ के चले जाते हैं, झगड़ा हो जाता है, छोड़ के चले जाते हैं, तो जो है या तो पति या पत्नी दोनों में से कह सकते हैं चलो भाई गलती हो गई, मान लेते हैं, फिर इसमें जो है हम दोनों एक दूसरे के साथ रहना शुरू कर देते हैं. सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार 1984 Francis it was held by the Honorable Supreme Court that where the husband obtained the degree of restitution of conjugal rights only seek a divorce under section so and so from the Act and preventing the wife from performing conjugal duties by driving her away from the house will constitute misconduct under section 23 subsection 1 of the Act. This is because the husband was taking advantage of his wrong and thus he was not entitled to any relief. अगर ऐसा नहीं हो सकता कि भाई कंजुगल राइट्स आपने जबरदस्ती केवल उसको रखना नहीं चाहते हैं, फिर भी जो है अगर अप्रोच करते हैं तो कोर्ट इज वेरी स्ट्रिक्ट ऑन दिस इशू. Wife may also present a petition for the dissolution of a marriage by decree of divorce on the ground. In the case of the any marriage solemnized before the commencement of this act, that the husband had married again before such commencement, or that any other wife of the husband married before such commencement was alive, time of solemnization of the marriage of the petitioner, provided that in either case the other wife is alive and the time of the presentation of petition. Wife may also present the petition for the dissolution of marriage by decree of the divorce. Wife can also approach to the court for the decree of the divorce after that in the suit on section 18 of the Hindu Adoption Maintenance Act 1956 are proceeding under section 125 of Code of 1990 are under corresponding section so and so so and so. A decree or order, as the case may be, has been passed against husband awarding maintenance to the wife, overruling that she was living apart from that since the passing of the such degree or other coalition between the parties has not been resumed for 1 year or upwards. Now, another case is the ground for the divorce. Section 13, subsection 2, the wife can take a ground for the divorce. This is one of the reason of the sodomy. If the person, if the husband having the relationship with the another man, then it is called sodomy. And sodomy is one of the ground for the divorce for the wife. Bestiality. Bestiality means the person who are having the sexual relationship with animal. If the husband is having the sexual relationship with the animal, then the wife can take a divorce. This is one of the grounds for under which section 13 subsection 2 the wife can take a divorce under this section. Section 13A, alternate remedy, relief in divorce proceeding. In any proceeding under this act on the petition for dissolution of the marriage by decree of divorce, except in so far as the petition is founded on the ground mentioned in clause so and so so and so, the court may, if it considered just to do so, having regard to the circumstance of death, pass instead of degree for divorce judicial separation. Once you are approaching to the court for the divorce, in that certain there are the certain exception of that underground 2nd, 6th, and 7th. The court has a power rather than to pass the degree of the divorce, they can pass the judicial separations or pass an order for the judicial separations. Now we will discuss about section 13B, the divorce by the mutual consent. If the husband and wife without any fault wants to take a divorce against each other, then they can approach to the court by degree of divorce by the mutual consent. Subject to the provision, this is petition for the dissolution of the marriage
by decree of the divorce may be presented to the district court by both the parties to the marriage together where such marriage was solemnized before or after the commencement. मीन्स अगर हस्बैंड और वाइफ चाहते हैं कि अगर हमें लेना है, किसी भी कारणवश नहीं रहना चाहते हैं, तो आप सेक्शन 13B में जो है कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। और इसमें जो है म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स के लिए जो है फर्स्ट मोशन और सेकंड मोशन, 2 मोशन होती हैं। तो फर्स्ट मोशन और सेकंड मोशन के बीच में जो है 6 महीने का गैप होना चाहिए। लेकिन बाद में जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज डिसाइडेड इन द मैटर ऑफ अमनदीप सिंह वर्सेस हरविंद कौर 2017, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि अगर ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि जो मतलब एक दूसरे से कोई संभव ही नहीं हो पाता है रहना, ऐसी स्थिति में इफ देयर इज नो पॉसिबल दैट द हस्बैंड एंड वाइफ कैन लिव टुगेदर, देन द 6 months पीरियड में भी वेव आउट। इस जजमेंट में जो है कहा गया था। एक आपको यू हैव मूव टू एप्लीकेशन, आई विल शो द एप्लीकेशन हाउ टू मूव एन एप्लीकेशन इन द म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स। Section 14, no petition for the divorce to be presented within 1 year of the marriage. This is a very important question. अगर हस्बैंड एंड वाइफ अगर शादी हो गई है, शादी होने के बाद अगर आप डाइवोर्स चाहते हैं तो 1 साल से पहले आप डाइवोर्स नहीं ले सकते हैं। मतलब अगर आपकी इच्छा हो चाहे नहीं हो तो भी आपको 1 साल तक जो है एक दूसरे के साथ अगर रहना हो तो रहिए, नहीं रहना तो अलग ही रहिए, लेकिन डाइवोर्स नहीं ले सकते हैं। इसमें कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हैं जो कि बहुत ही रेयर है। उसमें जो है 1 साल से पहले भी आप कर सकते हैं, लेकिन वो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस होना चाहिए, प्रोवाइडेड दैट the court may upon application made to it in accordance with the such rules as may be made by the high court in that behalf allow a petition presented before 1 year as elapsed since the date of the marriage on the ground that the case is one of the exceptional hardship to the petitioner or exceptional depravity on the part of the respondents, but it appears to the court that the hearing of the petition that obtained leave to present almost it is असंभव है, लेकिन बहुत ही रेयर कंडीशंस में आपको 1 साल से पहले भी मिल सकता है, लेकिन यू हैव टू मूव एन एप्लीकेशन एंड यू हैव टू टेक द लीव ऑफ द दैट पर्टिकुलर कोर्ट। इसमें जो है एक जजमेंट भी है, डिनायल ऑफ द सेक्सुअल एक्टिविटी कैन क्वालिफाई एन एक्सेप्शनल डिप्रेविटी। अगर कोई हस्बैंड और वाइफ या फिर जो है वाइफ जो है आपको सेक्सुअल एक्टिविटी से मना करती है तो क्या ये एक्सेप्शनल केसेस में है? नो। दो डिनायल ऑफ द कन्जुगल रिलेशनशिप इज द ग्राउंड ऑफ द डाइवोर्स। अगर आप इस ग्राउंड पे नहीं जा सकते हैं कि मेरी वाइफ मेरे साथ कोऑपरेट नहीं करती हैं और सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से मना करती हैं, इस केस में जो है आप साल से पहले नहीं जा सकते हैं। ये जो है डिसीजन है। इक्विवेलेंट टू इक्वलिटी बट सेम कैन नॉट बी सेट टू द अमाउंट एक्सेप्शनल हार्डशिप। द एक्सेप्शन ऑफ द एक्सेप्शनल हार्डशिप और एक्सेप्शनल डिप्रेविटी वुड बी अट्रैक्टेड इन एक्सटिंग्विशिंग सर्कमस्टांसेस। एक संकल्प सिंह वर्सेस परतनाथ चंद्रा SSC ऑनलाइन, the High Court of Delhi ruled that the court may permit a petition to be filed before 1 year of the marriage in certain circumstances of the unusual hardship or depravity on the part of the respondent. In this case, संकल्प सिंह के केस में ये हुआ था कि वो जो है पहले ऑलरेडी अमेरिका में ही रहते थे, शादी करने के लिए केवल इंडिया आए थे। उसके बाद जो है इन दोनों लोगों के बीच में शादी होने के बाद जो है 2-3 महीने में ही नहीं बनी, फिर वो अमेरिका जाके रहना चाहते थे। तो इसमें उन्होंने जो है पटियाला हाउस कोर्ट में एक पिटीशन प्रेजेंट की कि भाई मेरे को साल भर से पहले जो है इस ग्राउंड पे दिया जाए, लेकिन पटियाला हाउस कोर्ट ने डिसमिस कर दिया था। फिर वो जो है हाई कोर्ट को अप्रोच किए तो हाई कोर्ट ने ये कहा कि भाई ऐसी कंडीशंस बनती हैं कि फिर वो अमेरिका चले जाएंगे तो इसको कंसिडर किया जाए। तो इसको पटियाला हाउस ने फिर कंसिडर किया था एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में। तो ये एक एप्लीकेशन आपको लगानी पड़ेगी। अब ये सेक्शन 14, अब आता है सेक्शन 19। इन सब चीजों को अब सेक्शन 13, सेक्शन 14 हमने कवर कर लिया। अब ये आता है कि आप केस डालेंगे कहाँ, वेयर विल फाइल ए केस, हु इज द कॉम्पिटेंट जुडिक्शंस टू फाइल ए केस। ऐसे स्थिति में जो है आपको केस फाइल करने के लिए कहाँ कहाँ यू कैन प्रेजेंट ए केस, इसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए। एवरी पिटीशन अंडर दिस सेक्शन शैल बी प्रेजेंटेड टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ द हुज जुरिडिक्शंस। अगर आपको डाइवोर्स फाइल करना है तो डाइवोर्स जो है केवल और केवल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्पिटेंट जुरिडिक्शन में ही फाइल हो सकती है। You cannot directly approach to the High Court or Supreme Court. You have to approach to the District Court first. तो उस कंडीशन में भी कौन सी कोर्ट में जा सकते हैं? मान लीजिए सपोज अगर दिल्ली में जो है 4-5 कोर्टें हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो ऐसा नहीं कि अगर मैं पटेल नगर में रहता हूं तो मैं जाकर के सीधे साकेत कोर्ट में फाइल करूंगा, ऐसा नहीं है। अगर हम जहां रहते हैं उसका जो कॉम्पिटेंट जुडिक्शन लगता है वहां पे हम केस फाइल करेंगे।
इसमें देखिए, एवरी पिटिशन अंडर सेक्स शैल बी प्रेजेंटेड टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ व्हिच ऑर्डिनरी ओरिजिनल सिविल जुरिडिक्शंस द मैरिज वाज सोलेमनाइज्ड। जहां पे आपकी शादी हुई है वहां पर, सपोज अगर आपकी पटेल नगर में शादी हुई है तो आप जो है 30 तारीख जा सकते हैं। द रिस्पोंडेंट एट द टाइम ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ पिटिशन रिजाइड्स, इसमें जो है स्पेसिफिक वर्ड लिखा है रेस्पोंडेंट। अगर पत्नी फाइल करती है तो पति जहां रहता है वहां पे, या अगर पति फाइल करता है तो रेस्पोंडेंट एट द टाइम ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ पिटिशन रिजाइड्स, जहां पे वो रहती है उसको। पार्टी टू द मैरिज लास्ट रिजाइडेड टुगेदर, दोनों जो पार्टी हैं जहां पे लास्ट रह रही हैं, मतलब जो सेपरेशन होने से पहले जहां पे वो रही हैं, उस कोर्ट की जुडिक्शन में जा सकते हैं। इन केस द वाइफ इज द पिटिशनर हियर शी इज रिजाइडिंग ऑन द डेट ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ द पिटिशन, ये जो है वाइफ के लिए स्पेशल प्रिविलेज है कि वाइफ चाहे जहां भी रहती हैं वहां पे भी वो केस फाइल कर सकती हैं। Petition is residing at the time of presentation of the petition in case where the respondent is at that time residing outside the territory to which the act extends has not been heard of any for the 7 years, would be necessarily have heard of him if you are a petitioner. अगर जहां पे petitioner is residing at the time of the presenting the petition, जहां पे petitioner जिसने केस फाइल किया, petitioner में भी हस्बैंड में भी वाइफ, और ऐसी स्थिति में जो है जहां वो बाहर चले गए हैं या 7 साल तक उनका कोई अता पता नहीं है, तो जहां पिटिशन रिजाइड्स होता है वहां कर सकता है। This is all about the theoretical portion we have covered. And now, if any questions regarding this of the theoretical part, then certainly we can have a discussion for 2, 3, 4 minutes. Otherwise, we will go ahead for the practical part. Yes, my learned friends, if any questions from anyone. Am I audible to all of you? Yes or no? Yes, sir. Okay. Is there any questions, any queries? Then we'll discuss on it 2, 3, 4 minutes. Otherwise, we will cover on the practical portions. How to file a petition before the court and how to draft it. किसी के हमारे कोई सवाल हो तो एक बार पूछ Sir, लीजिए। I have a question, Vandana. हाँ, प्लीज वंदना जी, प्लीज बोलिए। जी सर, तो मेरा ये सवाल था कि अगर हस्बैंड किसी कारण क्या, बहुत सारे कारण होते हैं दो लोग के अलग होने का। जी। तो अगर वो लोग अलग हुए किसी कारण, अलग मतलब बिना किसी ये गवर्नमेंट प्रोफाइल के, हम लोग घर से अगर अलग हो जाते हैं, फिर बहुत ज्यादा बर्दाश्त करने के बाद अगर अलग हुए, और फिर भी वाइफ जो है वो अपने हस्बैंड से उतना ही प्यार करती है जितना वो शादी के फर्स्ट डे या एंगेजमेंट के बाद उसके साथ सपना, ड्रीम जो कल सजा रखता है, तो वो लाइफ का उसके अंदर, लड़की के अंदर आई थिंक कि रहता है शायद। तो मैं ये जानना चाहती हूँ सर कि अगर कुछ साल वो दोनों अलग हुए, फिर दोनों साथ हुए बच्चे के लिए, अगर साथ होते हैं और म्यूचुअल कंसेंट से, जैसे कि जो भी आपने बताया म्यूचुअल डिवोर्स के बारे में, ऐसा कुछ बन गया, ठीक है, कि हम 6 मंथ के बाद ले लेंगे डिवोर्स, बट डिवोर्स नहीं लिया गया, 3 साल 4 साल हो जाते हैं, और फिर आपको ऐसा लगता है, और फिर भी वो दोनों साथ नहीं है, एज अ फ्रेंड या बस वो अपना फर्ज वो निभा रहे हैं, और आप तो उनको देख के, लड़की जो है अपने हस्बैंड को देख के खुश है कि चलो मेरा बेटा, मेरा हस्बैंड साथ है, मैं भले ही साथ नहीं हूँ फिर भी कम से कम इनका कुछ तो साथ मिला, तो ये वो जो लड़की है वो उसी में खुश है, वो शायद इतना प्यार करती है कि वो उससे भी पूरी लाइफ टाइम उसको चला सकती है। जब वो प्यार करती हैं तो स्वाभाविक सी बात है डाइवर्स के लिए तो जाएंगी ना, म्यूचुअल कंसेंट से डाइवर्स तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि म्यूचुअल कंसेंट से डाइवर्स होने के लिए पति और पत्नी दोनों का कंसेंट होना जरूरी है। मगर साइन अगर हो चुका है कि हम आफ्टर 6 मंथ म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स देंगे, और लड़की तो उस समय भी नहीं चाहती थी, पर वो 6 मंथ का टाइम चाहती थी लाइफ में अपने, बट हस्बैंड जो है शायद कहीं और इंगेज है, वो लड़की को ये भी पता है कि वो कहीं और इंगेज है, मगर वो उसके बाद भी शायद पागल है जो उसको एडजस्ट करने के लिए अभी भी तैयार है, ठीक है। और अगर वो डिवोर्स चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने साइन तो किया है, आफ्टर 3 इयर्स 4 इयर्स अगर वो लेते हैं, और अगर वाइफ ना चाहे उस समय देना, बट उसने साइन किया है कि वो देगी, तो फिर इस केस में क्या होगा सर?
नहीं देखिए, आप जो अभी बता रही कहानी, उसमें वो देखना पड़ेगा कि उनके फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस क्या हैं, उसने कौन से डॉक्यूमेंट्स पे साइन किए हैं, उसके जी डॉक्यूमेंट्स के टर्म्स एंड कंडीशंस क्या थे, और किस ओके कंडीशन में जो है वो म्यूचुअल कंसेंट पे जाएंगे। जी ये सब सारी चीजें जो म्यूचुअल है ना, कंसेंट पे जा चुके हैं सर। ये हुआ है कि हम आपको ये सब कुछ देंगे, बच्चे को प्रायोरिटी देंगे, आपके लिए घर नहीं देंगे, तो वो सब देखिए, कुछ। म्यूचुअल म्यूचुअल कंसेंट से तो तभी जाएंगे, जैसे आप अगर कोई अगर वाइफ है, वाइफ अगर डाइवोर्स नहीं चाहती म्यूचुअल कंसेंट से, तो जी म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता। और जो हाँ, साइन हो चुका है पहले, वो वो डॉक्यूमेंट का क्या क्या होगा सर? यही जानना चाहती हूँ, क्योंकि वो साइन कर तो चुकी देखिए, है, जो वो जो 6 महीने का डॉक्यूमेंट टाइम चाहती थी। जो डॉक्यूमेंट साइन हो चुका है, अब जी वो जो है ना, क्योंकि देखिए लीगल कॉम्प्लिकेसी उनकी क्या है, उनके क्या क्या टर्म्स कंडीशंस पे साइन हुए हैं, वो हमें जी टर्म्स एंड कंडीशन पहले देखने होंगे। अच्छा उसके अच्छा बाद ही मैं फिर आपको एडवाइस कर पाऊंगा कि भाई वो ओके क्या ओके टर्म्स ओके कंडीशन पे थी। यू कैन गेट ओके इन सर। टच विथ मी, हम्म certainly विल एडवाइस यू हाउ यू कैन मूव। ओके सर ओके जी थैंक जी, थैंक यू यू थैंक सो यू। मच। Yes, is there anyone? No, then we will go ahead. Hardly 10 minutes remains. तो अब हम अपने अगली बात पे आते हैं कि अब हम अगर प्रैक्टिकल इश्यूज को कैसे डील करेंगे, और उसके लिए हमें क्या क्या जरूरत पड़ती हैं, कैसे एक पिटीशन ड्राफ्ट करते हैं, ये सब चीजें अब हम आपको आप दिखाएंगे एक पिटीशन के थ्रू, क्योंकि हमने ऑलरेडी ड्राफ्ट किया हुआ है। सबसे पहले हम एक कंटेस्टेड पिटीशन की बात कर लेते हैं, फिर म्यूचुअल कंसेंट की भी बात कर लें, क्योंकि म्यूचुअल कंसेंट में तो बहुत आसान होता है कि डाइवोर्स आसानी से मिल जाता है, लेकिन कंटेस्टेड पिटीशन में दैट टेक्स सम टाइम। सबसे पहले हम कंटेस्टेड की बात कर लेते हैं। अगर आपको एक पिटीशन, कोई हस्बैंड या वाइफ अगर एक दूसरे के साथ जो है नहीं रहना चाहते हैं, लेकिन रजामंदी नहीं हो पा रही है, तो सबसे पहले आपको फैमिली कोर्ट, ऑनरेबल प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट में आपको पिटीशन डालनी पड़ेगी। वहीं डालनी पड़ेगी जहां मैंने आपको जुडिक्शन बताया। तो दिस इज द फॉर्मेट, ऑनरेबल प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट, HMA नंबर सो। यहाँ पे आप पार्टी का नाम, हस्बैंड का नाम या वाइफ का नाम, पिटिशनर, जो केस डालेगा वो पिटिशनर होगा, और जिसके अगेंस्ट आप केस डालेंगे वो रेस्पॉन्डेंट होगा। इसमें जो है हमने आपको ग्राउंड बता दिए, क्या क्या ग्राउंड हो सकता है। सेक्शन 13(1), IA, IB एंड ऑल दोज तरह से 5 6 7 टाइप के हमने ग्राउंड्स बताए। उस ग्राउंड्स में जो है आप जा सकते हैं। और क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ेंगे, सबसे पहले तो आपको आप दोनों हस्बैंड वाइफ की जो है फोटो लगानी पड़ेगी। उसके बाद जो है दोनों के जो शादी के कार्ड होते हैं, शादी के कार्ड लगाने पड़ेंगे। आपके फोटोग्राफ्स, जो मैरिज की फोटोग्राफ्स हैं, वो आपको लगाने पड़ेंगे। दोनों लोगों के ID प्रूफ लगाने पड़ेंगे। और अगर कोई ऑलरेडी कोई केस चल रहा होगा, हो सकता है सेक्शन 12 डोमेस्टिक वायलेंस में चल रहा होगा केस, 498 में भी केस चल रहा होगा, या फिर आपने कोई सेक्शन 9 की कंजुगल राइट्स के लिए लगा रखे होंगे, ऐसे अगर कोई आपने केस डाल रखे हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स भी आपको यहाँ पे लगाने पड़ेंगे। दैट इज इन द फॉर्म ऑफ द इंडेक्स। सबसे पहले आप इंडेक्स बनाएंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं। पूरी पिटीशन जो है इंडेक्स के थ्रू जो है आपको बताना पड़ेगा। दिस इज स्पेशली फॉर द यंगस्टर्स वांट टू कम इन टू दिस प्रोफेशन, या फिर कोई नए लोग जो नहीं फाइल करते हैं। जो लोग रेगुलर फाइल करते हैं दे आर वेरी वेल अवेयर, लेकिन जो लोग फाइल नहीं करते हैं उनके लिए मैं बेसिकली बताना चाहता हूँ। अब ये तो आपका सबसे पहले इंडेक्स बनेगा। इंडेक्स के बाद आता है मेमो ऑफ पार्टी। मेमो ऑफ पार्टी आपको बहुत ही ध्यान से बनाना चाहिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसमें मेमो ऑफ पार्टी में सबसे पहले जो पिटिशनर होता है, मे बी हस्बैंड एंड वाइफ, उनका नाम, पिताजी का नाम और उनका पता। दूसरी पार्टी का नाम भी, दूसरे वर्सेस में जो है नाम, पिताजी का नाम, या डॉटर ऑफ है तो डॉटर ऑफ, और उनका पता। और ये आपको बहुत ध्यान देना चाहिए कि रेस्पोंडेंट कहाँ रह रहा है, या जुडिक्शन पे बहुत ध्यान से इसको रखिएगा, क्योंकि जुडिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। पता चला कि आप 5 साल 7 साल केस लड़ते हैं, आपका जुडिक्शन ही नहीं है, तो वो केस डिसमिस हो जाता है। दैट इज मोर एम्बेरसिंग। उसके बाद क्या कोर्ट फीस लगेगी, उसको आप यहाँ पे कोर्ट फीस का अलग कॉलम बनाइए। उसके बाद फिर आप आगे आ जाइए, यहाँ पे एक टाइटल लिखना पड़ता है पिटीशन, आपका पुलिस स्टेशन कौन सा पड़ता है। यहाँ पुलिस स्टेशन भी लिखना बहुत जरूरी है,
क्योंकि जिस पुलिस स्टेशन का आप केस डालेंगे, नाम डालेंगे, उस हिसाब से कोर्ट की जुडिक्शन बनेगी। ये भी आप ध्यान रखिए कि यहाँ पुलिस स्टेशन लिखना बहुत जरूरी है। पिटीशन अंडर सेक्शन, आप फिर उसके बाद जो है ये देखिएगा, पिटीशन अंडर विच सेक्शंस यू आर फाइलिंग दिस पिटीशन एंड व्हाट आर द ग्राउंड्स यू आर टेकन। क्योंकि अगर कंटेस्टेड पिटीशन है तो ग्राउंड्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कंटेस्टेड पिटीशन है तो आप क्या ग्राउंड्स पे आपको डाइवोर्स मिलेगा वो बहुत जरूरी है। अगर आप क्रूअल्टी पे डाल रहे हैं, एडल्ट्री पे डाल रहे हैं, डिसर्शन पे डाल रहे हैं, या फिर कन्वर्जन ऑफ द धर्म के पे डाल रहे हैं, जिसमें भी डाल रहे हैं वो आप जरूर देखिए। फिर उसके बाद आप लिखिए कि आप लोगों की शादी कब हुई, कौन से साल में हुई। उसके बाद जो है आपका यहाँ पे मैरिज कार्ड इनेक्ट कीजिए। उसके बाद स्टेटस लिखना पड़ता है, हस्बैंड एंड वाइफ, पिटिशनर हस्बैंड या पिटिशनर वाइफ हो सकती हैं। तो एट द टाइम ऑफ मैरिज आपका क्या स्टेटस था, एज क्या थी और कहाँ रहते थे। एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द पिटिशन, जब आप पिटिशन फाइल कर रहे हैं तो आप शादीशुदा रहेंगे, आपकी एज क्या रहेगी, रेजिडेंस दोनों का। इसी तरह से रेस्पोंडेंट का भी आपको ये लिखना पड़ेगा कि शादी से पहले क्या था और शादी के बाद क्या है। उसके बाद जो है जो आपकी कहानी होती है कि हम यहाँ पे शादी किए, फिर यहाँ से यहाँ चले गए, फिर शादी करने के बाद वो हमारे घर में आई, घर में आने के बाद जो है हम दोनों लोग कुछ दिन तक ठीक रहे, फिर उसके बाद हम लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, या फिर उन्होंने जो है हमको जो है गाली गलौज देना शुरू किया, या फिर हस्बैंड है तो हस्बैंड को जो है कैसे गाली गलौज करना शुरू कर दिया, सास से क्या झगड़ा हुआ, सास को खाना देती हैं नहीं देती हैं, या फिर आपके पेरेंट्स को जो है अच्छा से बिहेवियर नहीं करती हैं। ये सब सारी कहानी आपको इसमें डालनी पड़ेगी। और अगर क्रुएल्टी पे हैं तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि उन्होंने क्रुएल्टी किया है। क्रुएल्टी किया है मतलब जैसे आपके साथ जो है आपको अगर कोई खाना पीना नहीं देती हैं, या फिर आपको अच्छे से बिहेवियर नहीं करती हैं, आपके साथ गाली गलौज करती हैं, या फिर दूसरे तरफ से, दोनों तरफ से आपको देखना पड़ेगा। अगर आप हस्बैंड की तरफ से हैं तो हस्बैंड उनके लिए क्या बिहेवियर करता है, हस्बैंड के साथ क्या बिहेवियर हो रहा है। अगर आप वाइफ डाइवोर्स दे रही हैं तो उनका हस्बैंड उनके साथ कैसा बिहेवियर कर रहा है। ये सब सारी चीजें आपको इसमें डेट वाइज आपको जो है डालनी पड़ेगी। और उसमें स्त्री धन की बात आती है कि स्त्री धन का क्या हुआ, कौन ले गया नहीं ले गया, स्त्री धन मिला नहीं मिला। ये सब चीजें जो है आप इसमें सारा चीजें जब अपने जो है पिटीशन में इनपुट के दीजिएगा और पिटीशन बढ़िया से ड्राफ्ट कीजिए, तैयार कीजिए। उसके बाद अगर कोई क्राइम अगेंस्ट वोमेन सेल में अगर कोई जो है गया है, उसके लिए क्या उन्होंने जो है क्या एक्शन लिया, क्या एक्शन नहीं लिया, ये सब चीज़ें जो है आप इसमें डालिए। और उसके बाद जो है आप अपना जुडिक्शन का इशू उठाइए कि हमारी जुडिक्शन कहाँ बनती है। उस जुडिक्शन के बाद जो है लिमिटेशन में है या नहीं है, उसको भी आपको देखना पड़ता है। अगर लिमिटेशन में है तो उसका जो है लिमिटेशन का जिक्र कीजिए। और उसके बाद जो है फिर आप अपनी प्रेयर क्लॉज डालिए। अगर डिसर्शन पे ग्राउंड पे लिए हैं तो आपको दिखाना पड़ेगा 2 साल से जो है एक दूसरे से अलग रह रहे हैं। उसके बाद आप प्रेयर कीजिए कि भाई मेरे को जो है म्यूचुअल कंसेंट से जो है, आपने 3 चीज़ें जरूरी है, जुडिक्शन यहाँ बनता है, विद इन द लिमिटेशन है, और आपने कोर्ट पे कर दी है। फिर आप प्रेयर में डालेंगे कि इस ग्राउंड पर मुझे जो है डाइवोर्स दिया जाए, और आप अपना एफिडेविट लगाएंगे। एफिडेविट और एफिडेविट के साथ वकालतनामा और लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ये डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने पड़ेंगे। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स में बेसिकली होता है आपका शादी का कार्ड, शादी तो आपको प्रूफ करना हो कि मेरी शादी हुई है। अगर कोई FIR हुई है तो FIR में भी 498 में हुई हो, और भी अगर कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं ये आप डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लगा दीजिए। अब आते हैं म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स। ये तो कंटेस्टेड डाइवोर्स हो गया। फिर जैसे ही आप जो है पिटीशन फाइल करेंगे, वो जो है अपना रिप्लाई लेके आएंगे। रिप्लाई के बाद आप अपना काउंटर देंगे। काउंटर देने के बाद जो है फिर जो है एविडेंस दिया जाएगा। आप पहले अपना एविडेंस देंगे पिटीशनर, उसके बाद उनका क्रॉस होगा, उसके बाद जो है दूसरे पार्टी जो अपनी एविडेंस देगी उनका क्रॉस एग्जामिन होगा, फिर उसके बाद रिटन आर्गूमेंट्स फाइल होगा, फिर आर्गूमेंट्स होगा, फिर आपको जो है डाइवोर्स मिलेगा। दिस इज द कंटेस्टेड पिटीशन। अब म्यूचुअल कंसेंट से आते हैं बात। अगर आप म्यूचुअल कंसेंट में जाते हैं तो म्यूचुअल कंसेंट में सबसे पहले जाने से पहले आपको एक सेटलमेंट एग्रीमेंट बनाना पड़ता है कि हम दोनों राजी हैं। अब उसके लिए सेटलमेंट एग्रीमेंट की बात कर लेते हैं। तो सेटलमेंट में क्या क्या लिखना चाहिए, क्या क्या नहीं लिखना चाहिए। अगर सेटलमेंट की बात करते हैं तो सेटलमेंट की बात करने के लिए आपको ये लिखना पड़ेगा कि हम दोनों पार्टी जो है एग्री हैं। पहले जो है एक पार्टी का नाम, वो कहाँ रहती हैं, उनके पिताजी का नाम क्या है, फिर दूसरी पार्टी का नाम, वो कहाँ रहते हैं, क्या रहते हैं। उसके बाद जो है कब शादी हुई है, और एटलीस्ट 1 साल जो है आप दोनों को ये दिखाना पड़ेगा कि हम दोनों एक दूसरे से 1 साल से अलग रह रहे हैं। क्योंकि 1 साल से पहले जो है ये म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स भी नहीं हो सकता, तो आपको साल भर तो इंतजार करना ही पड़ेगा। उसके बाद आप
इसमें सारा सेटलमेंट कर लेंगे कि भाई कौन किसको कितना देगा, कौन किसको कितना लेगा। अगर बच्चे हैं तो बच्चे किसके पास रहेंगे, अगर बच्चे के लिए मेंटेनेंस देना है तो कौन देगा। उसके बाद अगर बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, पढ़ने लिखने की जिम्मेदारी किसकी रहेगी, ये सब सारी चीजें जो है आपके इस सेटलमेंट में आ जाएगा। और इस आपका स्थिर धन की बात करते हैं तो स्थिर धन कौन है, अगर मान लीजिए हस्बैंड के पास कोई प्रॉपर्टी है तो उस प्रॉपर्टी को कैसे लेगा, कौन लेगा, और कौन उसकी देख रेख करेगा। कई बार जो है ऐसी मान लीजिए प्रॉपर्टी है किसी मतलब किसी हस्बैंड ने वाइफ के नाम प्रॉपर्टी खरीद ली है, हो सकता है वाइफ वो प्रॉपर्टी आपको दे ना दे, देगी नहीं देंगी, ये सब चीजें जो है सारी चीजें आपको जो है इसमें देखना है। तो ये सब सारी चीजें करके आप एक सेटलमेंट कर लेंगे। और सेटलमेंट में ये भी लिखेंगे कि हम ये अपनी मर्जी से सेटलमेंट कर रहे हैं, हम एक दूसरे के खिलाफ कभी भी कोई केस नहीं करेंगे। अगर कहीं कोई केस किया भी होगा तो उस केस को विड्रॉ कर लेंगे। अगर मान लीजिए पैसे की बात होती है, मान लीजिए 10 लाख में सेटलमेंट होता है, तो 10 लाख को सेटलमेंट करने के लिए हमको फर्स्ट मोशन सेकंड मोशन 2 बार मोशन होती है, तो फर्स्ट मोशन में हम जो है इतने पैसे देंगे, सेकंड मोशन में हम इतने पैसे देंगे, और सारे केसेस को विड्रॉ करेंगे। ये सारी चीजें बड़ी माइन्यूटली और इलाबोरेटली आपको अपने इस एग्रीमेंट में लिखना है। और इस एग्रीमेंट को द्वारा, और सबसे लास्ट में जरूर लिखिए, ये बिना फोर्स और कोर्सन मतलब किसी के दबाव में नहीं हो रहा है, ये वॉलंटरी हो रहा है, ये लिखना बहुत जरूरी है। और उसको जो है दोनों पार्टी के द्वारा साइन होना चाहिए, और 2 विटनेस मैंडेटरी हैं, तो 2 विटनेस भी रहना चाहिए। ये आप जब सेटलमेंट बना लेंगे, सेटलमेंट बनाने के बाद जो है आप म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स की पिटीशन ड्राफ्ट करेंगे। और पिटीशन में क्या होना चाहिए ये मैं आपको दिखाता हूँ। सेम टाइटल में रहेगा, प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट, केस नंबर सो एंड सो, यहाँ पार्टी का नाम लिखा रहेगा। फिर मेमो ऑफ पार्टी आएगी, मेमो ऑफ पार्टी में दोनों पार्टियों के नाम रहेंगे। वहां पे केवल पिटिशनर रेस्पोंडेंट थे, लेकिन यहाँ पे पिटिशनर नंबर 1 और पिटिशनर नंबर 2, क्योंकि हस्बैंड वाइफ के बीच में हो रहा है, कंसेंट से हो रहा है, यहाँ रेस्पोंडेंट नहीं होंगे। पिटिशनर नंबर 1 एंड पिटिशनर नंबर 2 मेमो ऑफ पार्टी बनेगी। उसके बाद जो है पिटिशन बाय म्यूचुअल कंसेंट सेक्शन 13B, सेक्शन 13B फर्स्ट मोशन सब सेक्शन 1 सब सेक्शन 2 में जो है सेकंड मोशन में होता है। तो फर्स्ट मोशन में लिखेंगे आपकी शादी कहाँ हुई, यहाँ भी वही लिखना पड़ेगा, स्टेटस बिफोर मैरिज, स्टेटस आफ्टर मैरिज। उसके बाद जो है कुछ टेम्परामेंटल डिफरेंसेस के कारण जो है हम एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, अगर कोई बच्चा है तो बच्चे का दीजिए। और इसमें ये भी लिखिए कि बच्चे की देखरेख कौन करेगा, बच्चे का एजुकेशन कौन करेगा, आपके सेटलमेंट हुआ है, किस टर्म्स एंड कंडीशन पर सेटलमेंट हुआ है, और फिर इसकी जुडिक्शन कहाँ बनती है ये देखिए, ये विद इन द लिमिटेशन है ये लिखिए। इसके बाद जो भी एप्रोप्रिएट कोर्ट फी है वो आप पे कीजिए, फिर इसके बाद आप प्रेयर कर दीजिए। जैसे ही आप ये केस जो है ये प्रेयर, और इसके साथ इसमें जो है एक चीज है कि इसमें दोनों लोगों की एफिडेविट लगी है, इसमें 2 एफिडेविट लगी है, एफिडेविट ऑफ पिटिशन नंबर 1 एंड एफिडेविट ऑफ पिटिशन नंबर 2, और दोनों लोगों के फोटोग्राफ्स लगेंगे। फिर ये कोर्ट में जो है, और इसके साथ साथ डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, आधार कार्ड, पैन कार्ड, मैरिज इन्विटेशन कार्ड, फोटोग्राफ्स ऑफ द मैरिज, ये सब सारी चीजें लगा करके आप कोर्ट में जाइए। कोर्ट में जो है दोनों लोगों को जब अपियर होंगे फर्स्ट मोशन पे, तो उनकी जो है सेटलमेंट रिकॉर्ड होता है, सेटलमेंट रिकॉर्ड करके हो करके फर्स्ट मोशन कंप्लीट हो जाएगी। अगर फर्स्ट मोशन कंप्लीट हो जाती है तो 6 महीने का पीरियड कूलिंग पीरियड रहता है, तो जो उसके लिए भी एक एप्लीकेशन लगती है कि 6 महीने के कूलिंग पीरियड को वेव ऑफ कर दिया जाए। तो वेव ऑफ की भी एप्लीकेशन मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। ये एप्लीकेशन बनेगी अंडर सेक्शन 151 ऑफ द सीपीसी सीकिंग परमिशन ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट फॉर वेविंग ऑफ द कूलिंग पीरियड। कूलिंग पीरियड को खत्म करने के लिए 6 महीने के लिए सेकेंड मोशन के बीच में, इसमें जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आप रेफर करेंगे, अमरदीप सिंह वर्सेस हरवीन कौर, इसमें 6 महीने का पीरियड कूल ऑफ हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है ये जो सेकेंड मोशन की जो पिटीशन लगाएंगे उसके साथ साथ ये एप्लीकेशन भी लगानी पड़ेगी आपको। इस एप्लीकेशन के साथ साथ 6 महीने का आपका कूलिंग पीरियड खत्म हो जाएगा। इसमें भी दोनों लोगों की एप्लीकेशन लगेगी, दोनों के कंसेंट लगेंगे, और दोनों ही साइन करेंगे कि दोनों ही म्यूचुअली चाहते हैं कि ये 6 महीने का पीरियड खत्म कर दिया जाए। फिर उसके बाद आपको जो है सेकेंड मोशन ग्रांट हो जाएगा। सेकेंड मोशन होने के बाद जो है आपको डिग्री ऑफ डाइवोर्स मिल जाएगी। और इसके साथ साथ एक वकालतनामा भी, तो हर किसी के साथ अपना वकालतनामा जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट कि हाउ टू फाइल पिटीशन बिफोर द कोर्ट फॉर द कंटेस्टेड डाइवोर्स। ऑफ कोर्स कंटेस्टेड डाइवोर्स में जो है बहुत समय लग जाता है, इट टेक्स एटलीस्ट 3 to 4 years कंटेस्टेड डाइवोर्स में, अगर दोनों लोग, अगर हस्बैंड एंड वाइफ। सो दिस इज द ऑल अबाउट द प्रैक्टिकल थिंग्स। और मेरा अपना पर्सनल ये मानना है कि अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर नहीं बन पा रहा है, अपने सारे प्रयास करने के बाद,
तो आपको जो है म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स ले लेना चाहिए, क्योंकि आपको जो है उसमें नहीं जाना चाहिए कि भाई कंटेस्टेड डाइवोर्स करें। लाइफ इज वेरी शॉर्ट। अगर आपकी आज की डेट में जो है, मेरा अपना ये पर्सनल व्यू है किताब के ज्ञान से अलग, कि अगर जो है लाइफ हार्डली जो है 30-32 साल में लोगों की शादी हो रही है, 10 साल अगर उन्होंने केस लड़ने में लगा दिया, 45 साल की उम्र हो गई, फिर आगे क्या होगा आई डोंट नो। क्योंकि भाई लाइफ इज वेरी शॉर्ट, हार्डली 60-65 साल की आज की डेट में उम्र हो रही है। तो अगर देख रहे हैं कि अगर पॉसिबल है तो साथ में रहें, अगर संभव नहीं है तो म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स इज ऑलवेज फेवरेबल, क्योंकि आपको जो है 3-4 महीने में आपको डाइवोर्स मिल जाता है। आप अपना लाइफ, यू कैन स्टार्ट अ लाइफ अफ्रेश। So rather than going to the litigations, going into the divorce by the contested divorce, you should also prefer the consent, mutual consent divorce. Please, my friends, thanks for all our giving your precious time. And now you can have a question and answer session. There are the certain chat in the chat box. Certainly, we have already our learned member कृष्णा जी कह रहे हैं कि भाई शेयर ड्राफ्ट कर दी, ड्राफ्ट द शेयर। सर्टेनली I have shared the draft, and certainly we will session, the entire session is the recorded session. Certainly we will share everything with us. If my any learned friend have any questions, then they can ask. Please. Certainly कृष्णा जी, certainly I will share the draft. मेरे किसी भाई बंधु, now you can switch on your cameras, so I can see some beautiful faces we have here. क्योंकि जब हम सेशन ले रहे थे तब तो किसी को नहीं देख पाए, लेकिन आप तो देख सकते हैं। प्लीज माय फ्रेंड्स, प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास। और अगर किसी हमारे साथी को कोई सवाल है तो सर्टेनली वी कैन हैव ए डिस्कशन नाउ ऑन द ओपन प्लेटफॉर्म। क्योंकि अभी तक तो हम ही बोल रहे थे, हम किसी का सुन नहीं पा रहे थे। हमारे कोई भी साथी, अगर सभी साथियों को नमस्कार, कैमरा ऑन होने के बाद सभी साथी दिख रहे हैं। अगर किसी को कुछ पूछना हो मेरे भाई, तो मेरे भाई, मेरी बहन, हमारे फ्रेंड्स, यस प्लीज। हेलो। यस सत्यम जी, बताइए, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? यस सर, मेरे जहाँ से मैं आता हूँ प्रयागराज से जी। वहाँ पे एक केस है कि एक लेडी है हम्म जिन्होंने 3 साल से घर छोड़ रखा है अपना जो मैट्रिमोनियल होम है, और वो अकेले रह रही है। उनकी एक बेटी भी है जो कि 3-4 साल की हो गई है, पर उनका जो पति है वो कमाता नहीं है, पर उसके नाम पे प्रॉपर्टीज हैं। तो क्या वो प्रॉपर्टीज भी क्लेम कर सकती है? सो हाउस बात, अगर वाइफ है तो अगर उनकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है तो उसमें भी राइट है, और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है तो उसमें भी राइट है। वाइफ है, लीगली वेडेड वाइफ है, तो 100% उनका राइट तो हाई है। सेल्फ एक्वायर्ड है तो भी, एंसेस्ट्रल है तो भी, वो तो उनका राइट कहीं जाता ही नहीं। थैंक यू सर। जी, वो बात अलग है कि वो अपने लाइफ टाइम में उनकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी बेच दें, बात अलग है। लेकिन अगर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है तो वो बेच भी नहीं सकते, उसमें वाइफ का 100% राइट बनेगा। शी कैन टेक दैट प्रॉपर्टी बाय फाइलिंग अ पिटीशन बिफोर द कोर्ट। यस मिस पूजा, समथिंग। और किसी साथी को कुछ पूछना है मेरे भाई? डॉक्टर मेरा एक सवाल है छोटा सा। हाँ प्लीज प्लीज, छोटा सा बड़ा सा कोई भी सवाल तो सवाल है, पूछिए प्लीज। नहीं, बड़ा सवाल नहीं। मेरा सवाल छोटा सा ये है कि म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स की सिचुएशन में जब कोई दो पार्टीज आपस में म्यूचुअल कंसेंट में डिवोर्स में जाती है, उस स्थिति में क्या कोर्ट बाउंड होता है उन्हें डिवोर्स देने के लिए, या कोर्ट उससे पहले कुछ अपनी तरफ से कुछ प्रोसीजर्स को फॉलो करता होगा, या उसने समझ लिया कि दोनों पार्टी आई है म्यूचुअल कंसेंट से उन्होंने अपना? नहीं, देखिए, अगर दोनों पार्टी कंसेंटेड है, दोनों पार्टी ने अपने एफिडेविट फाइल कर देंगे कि हम डाइवोर्स चाहते हैं, तो कोर्ट बाउंड है उसको डाइवोर्स देने के लिए। ऐसा कोर्ट उनको मना नहीं कर सकता कि नहीं तुम क्यों अलग होना चाहते हैं, मैं नहीं देता, ऐसा नहीं है। अगर दोनों कंसेंट से गए हैं तो कोर्ट बाउंड है कि उनको जो है देगा। अगर कोई बहुत ज्यादा लीगल इरेगुलरिटीज नहीं है तो नॉर्मली ऐसे केसेस में जो है म्यूचुअल कंसेंट में डाइवोर्स मिल ही जाता है, फर्स्ट मोशन और सेकंड मोशन। ज्यादा जो 6 महीने का पीरियड है, ज्यादा कोर्ट कर सकते हैं कि 6 महीने हम आपको नहीं देंगे, 6 महीने के बाद आइएगा। लेकिन वो भी सुप्रीम कोर्ट ने जब जजमेंट दे दिया उससे कर सकते हैं कि नहीं ठीक है जी, आप 6 महीने का वेव आप कर सकती हैं।
वो भी डिस्क्रिशनरी पावर है, तो कई बार करती हैं, कई बार नहीं भी करती हैं, ज़्यादा ज़्यादा ये कर सकती हैं, लेकिन आपको डाइवोर्स से मना नहीं कर सकते, डाइवोर्स देने जी जाए। जी जी प्लीज। और मेरे कोई साथी, राकेश जी कुछ आप कहना चाह रहे हैं? राकेश जी आपके कुछ सवाल हैं? So I have a question. यस सर प्लीज। Sir, in the legal marriage, husband wife they are living in the different places. जी। Approx 8 साल, maximum 8 साल they are living different places. So like husband like father उन्होंने उसको बेदखल करवा रखा है for the all properties. So like it can be possible wife like अगर claim करती है for property तो she can take it, or like she's eligible for like claim to the like properties or any like कोई भी देखिए, तो like अगर after प्रॉपर्टी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है तो कभी भी उनका हक बनते ही बनता है। सर बेदखल के केसेस में भी देखिए, बेदखल का कोई ऐसा फुल प्रूफ तो है नहीं। कई लोग जो है क्या करते हैं कि भाई अगर मियाँ बीवी के झगड़े चल रहे हैं तो उनको प्रॉपर्टी से बेदखल न्यूट्रलाइजमेंट करके कर देते हैं। तो ऐसा तो कोर्ट उसको देखती है कि भाई इनका बेदखल करना जस्टिफाइड है या केवल और केवल जो है प्रॉपर्टी में हिस्सा न मिले इस इंटेंशन से इन्होंने इसको बेदखल कर दिया। क्योंकि लोग आजकल स्मार्ट प्ले कर रहे हैं कि भाई चलो मियाँ बीवी के झगड़े करते बेदखल कर देते हैं तो उसको प्रॉपर्टी में नहीं मिला। ऐसा नहीं। कोर्ट विल लुक इनटू द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज। मतलब हो सकता है कि भाई अगर शादी से पहले उसको बेदखल कर रखा है तब तो उसको जो है कुछ मिलेगा ही नहीं। लेकिन अगर वो भी प्रॉपर्टी इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है तो बेदखल का कोई मतलब नहीं बनता है। इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है तो उसमें बच्चे का राइट बनता ही बनता है। ओके, थैंक यू सर। Probably there is no further questions. I think so. अगर किसी को हो तो भाई 2-3 मिनट है पूछिए, बिकॉज आप लोगों ने बहुत हमें समय दिया। I am so thankful to you, to all of the learned friends. And certainly I would like to say that we have always have a session on the second and fourth Saturday every month. So whoever wants to join, every people of India is invited to join this session. And certainly it is free of cost. We invite all our learned friends, and we can also share with your friends. Certainly through Vidya Vijay Foundation, this is an NGO, and we are trying to level best to provide knowledge to the society at large. So we keep on having this session on the second and fourth Saturday. Please get in touch. And through Vidya Vijay Foundations, we have also recorded session on the Vidya Vijay Foundation YouTube. We have also on the Instagram and Facebook, everywhere. Certainly you can get in touch with us. Our mobile number, email ID, everything is there. So please get in touch. Certainly we keep on updating the things through email and WhatsApp. And whoever is interested to join, you all are the most welcome. Thanks for all your friends. Yes, Ms. Girsa. Thank you so much, sir, for this informative session. I would like to express my sincere gratitude to all of you for joining us today and making this session a successful one. I would also like to thank our esteemed speaker, Dr. Nityanand Singh sir, for sharing his valuable insights and experiences on the topic divorce. He has enlightened us with his knowledge and expertise on the legal, psychological, and social aspects of divorce. Thank you, sir, for your informative session and inspiring presentation. At last, I would like to thank Vidya Vijay Foundation for organizing this wonderful session. Thank you, sir. सभी साथियों को नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का। फिर अगले सेशन में मिलेंगे 8 सितंबर। धन्यवाद। धन्यवाद।